Going on, you fighting entrepreneurs, welcome back in this video. Today is my 30-day of this 30-day video challenge series where I'm supposed to make daily one video for the next 30 days, and today is my 30-day video. And I'm feeling so proud, feeling so energetic, feeling so charged up, feeling so pumped because I completed this challenge without missing any single day. So alright, in this video I'm going to talk about challenges, why challenges are important for your life, for your success, for your growth. I'm going to talk about how to take challenges and why challenges are so very essential for the growth of your life. So make sure you watch complete video and subscribe my channel so you don't miss any future videos on this channel. So make sure you subscribe. So let's get started. First thing first, we need to understand what is challenge. See, challenge is a vehicle which help you to reach at the next version. If you want to reach at your greater version of your next version, then you need to take this vehicle. Only this vehicle can help you to reach at your next version, and that vehicle is challenges. If you want to become a greater version of yourself, you need to take challenges because challenges will help you to reach there. Alright, now you understand what is challenge. Challenge is a vehicle which help you to reach at your greatest level. How to take challenge? See, challenge is a realistic. Do not take challenge in emotion. I remember I take 100 days of health challenge and I do not even complete 2 or 3 days. I take 100-day challenge and I even don't complete 2 or 3 days consistently because that challenge is not reliable. That challenge is not realistic according to me. That challenge is not visualizable for me. But in the emotions, I want to do something great, and in the emotions I take that challenge. I do not complete that challenge. At the end of results, I feel so bad, I feel so guilty. But I understand one thing, that if you want to take any challenges, that challenges should be realistic. That challenge should be visualizable. The more important thing is visualizable, which I am feeling right now. Your challenge should be visualizable. Whatever challenge you take, make sure your challenge is visualizable. In your mind, you can visualize those challenge, those process. Your challenge should be achievable. See, what happens once you take a 100-day challenge, a 200-day challenge, a 50-60-day challenge, and if you not visualize, if you do not think that challenge is achievable, you can't achieve that challenge. That's the reason I take 30-day challenge, because once I decide to take 30-day challenge, I thought like this is possible. Yes, this is difficult. Of course, if you are taking challenges, make sure your challenge is difficult but not impossible. For 100 days is quite impossible. Maybe today I can see little clarity that even 90 days is possible, but still I'm not that much sure. But I'm sure for 30 days because I have a confidence right now. Don't worry if you do not have 30-day confidence. You can go with 10 days, you can go with 1 week. Make sure build your credibility by yourself. So challenges लीजिए, challenges बहुत ज़रूरी है. Without challenges you can't grow in your life. और challenges एक realistic होनी चाहिए, एक measurable होना चाहिए, एक visualizable होना चाहिए कि आप अपने challenges को देख पा रहे हो. अगर आप अपने challenges को अपने mind में देख पा रहे हो कि कितना painful होगा process, कितना कठिन होगा, मन नहीं करेगा फिर भी करना पड़ेगा, और आपको लग रहा है उसके बावजूद कि आप कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर पाओगे. और चैलेंजेस कभी भी इमोशन में ना लीजिएगा. दिस इज़ माय एक्सपीरियंस. इमोशंस में चैलेंजेस नहीं ली जाती है. आपको कॉन्शियस होके चैलेंजेस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार चैलेंज
कंप्लीट करते हैं तो आप जितना प्राउड फील करते हैं, एट द सेम टाइम अगर आप चैलेंज लेकर उसे कंप्लीट नहीं करते आप उतना ही गिल्टी महसूस करते हैं। आपको मैं एक रीज़न बता सकता हूँ कि आप जब चैलेंज कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आप शायद ऐसे वो इंसान नहीं है जिनमें वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी है कुछ करने की। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई भी इंसान ग्रेट नहीं है इस दुनिया में, कोई भी इंसान ग्रेट पैदा नहीं हुआ है इस दुनिया में। सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं, सिर्फ बच्चे, प्लेन सिंपल सादे बच्चे पैदा होते हैं। और सिर्फ दो ही डर से पैदा होते हैं, एक डर ऊंचा सुनने से, लाउडी नॉइस, और दूसरा फॉलिंग डाउन, फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। बस ये दो ही फियर बच्चों में होता है, बाकी कोई फियर नहीं होता है। बाकी जो भी चीज़ हम सोचते हैं, समझते हैं, जाने हैं, बिलीव करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमने अपने इन्वायरमेंट्स, जो इन्वायरमेंट हमारे सराउंड में थी उससे हमने सीखा है। जो भी बिलीव आप आज मानते हो वो सब उससे सीखा है। सो कोई भी ग्रेट नहीं है। हर ग्रेटनेस के पीछे कई 100 घंटों की अभ्यास लगी है, कई 100 घंटों की प्रयास लगी है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। मैं अपने फील्ड से कुछ चीज़ें बता सकता हूँ आपको। मैं एक स्पीकर है, उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उन्हें बहुत मानता हूँ। उनका नाम है धनंजय हितराची, इंटरनेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन इन स्पीकिंग अचीव किया इन 2016 और 17 आई गेस। तो वो उसको अचीव करने के लिए उन्होंने कितने हज़ार लोगों को डिफीट किया। उसको अचीव करने के लिए उन्होंने 10 साल का प्रयास, 10 साल से उसे ट्राई किया, देन जाके दे विल अचीव दैट रिकॉर्ड, दैट वर्ल्ड चैम्पियन ऑन पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन वो कई हज़ार घंटों और कई 100 घंटों का प्रयास, कई सालों की अभ्यास लगी थी वो 7 मिनट के एक स्पीच में, तब जाके उन्होंने सबको, कई हज़ार लोगों को डिफीट किया। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, संदीप माहेश्वरी सर का। आप आई एम श्योर आप सभी संदीप माहेश्वरी सर को जानते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप संदीप माहेश्वरी सर को भी ज़रूर जानते रहेंगे, क्योंकि आप इस तरह के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस आप संदीप माहेश्वरी सर को भी ज़रूर सुनते होंगे। तो संदीप माहेश्वरी सर को एक पुणे में एक IIT कॉलेज ने इनवाइट किया था टू इंडोर्स और टू गाइडेंस देयर स्टूडेंट। उन्होंने वहाँ पर अपनी स्पीच डिलीवर नहीं कर पाई, वहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच कंटिन्यू नहीं कर पाई। दे डू नॉट गिव देयर स्पीच ओवर देयर। बट कुछ सालों बाद उनका एक लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखिएगा गाइस, हेल अमाउंट ऑफ पीपल आर सिटिंग ऑन दैट ऑडिटोरियम, और उनके सामने 2 घंटे से ज़्यादा की स्पीच दी है। एक ऐसा पर्सन जो एक स्टूडेंट के सामने बोल नहीं पाया, बट दे विल स्पीक इन द ऑडिटोरियम विद फील्ड बाय लैक्स ऑफ पीपल। हाउ इज पॉसिबल? अभ्यास, प्रयास, स्ट्रगल, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, उसके पीछे की प्रैक्टिस, उसके पीछे की अभ्यास सर ने की है। और हर वो इंसान जो आज आपको मोटिवेट कर सकता है, आज आपको, हर वो इंसान आपकी किसी भी फील्ड में, हर एक वो इंसान जो आपको प्रेरित करता है, जो आपको इंस्पायर करता है, उसकी इंस्पिरेशन आपने वो झलक देख कर ली है, वो 5-10 मिनट की क्लिप देख के ली होगी, वो उसकी सेमिनार्स को अटेंड करके लिया होगा, उनसे 5-10 मिनट बात करके मिली होगी। लेकिन उनको वो चीज़ बनने के लिए उन्होंने कई 100 घंटों की अभ्यास करी है, कई 100 घंटों का प्रयास किया है, तब जाकर वो इतना इफेक्टिवली स्पीक कर पाते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उनकी स्पीच इतनी इफेक्टिवली होती है कि सबका मोह ले लेते हैं, वो सबको वो एक अपनी तरफ खींच लेते हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर हैं। लेकिन क्या वो स्पीकर प्रधानमंत्री बनने पे आया उनको? क्या वो इतने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं बिकॉज कि वो प्रधानमंत्री हैं इसके लिए? नहीं। जब वो गुजरात के CM थे तभी भी वो ऐसी स्पीच दे रहे होंगे। जब वहाँ पे भी क्या, जब वो CM बने तब वो अच्छी स्पीच देना चालू किए? नहीं। जब से वो पॉलिटिक्स में आए, जहाँ भी उनको जैसे भी चांसेस मिला
उन्होंने बोलना स्पीक किया, उन्होंने चालू किया, उन्होंने भाषण देना स्टार्ट किया और डे बाय डे प्रयास के साथ 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 आज वो इतनी पावरफुल स्पीच देते हैं कि ताकि सब उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, वो एक्सेलेंस अचीव करने के लिए कई 100 घंटों का प्रयास लगता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। एंड लोग आपकी कई 100 घंटों की अभ्यास देखने के लिए नहीं रुके हैं, नहीं बैठे हैं। उन्हें आपके कई 100 घंटों की अभ्यास का जो रिजल्ट है वो देखना है। आपको उसके लिए पुरस्कार, आपको उसके लिए सम्मान मिलता है, ना कि आपके कई 100 घंटों की अभ्यास के लिए। आपकी कई 100 घंटों की अभ्यास आपको डिफाइन करती है आपके लिए। मुझे याद है मैं संदीप महेश्वरी सर का लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देख रहा था। एट दी एंड सर ने रो दिया। और भी ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनको मैं उनके एक्टिंग के पसंद करता हूँ, और जब मैं उनको देखता हूँ कि वो अवार्ड लेते समय जो इमोशनल डायलॉग है, वो जो रोने टाइप का वो जो चीज़ होती है, मुझे लगता है कि क्यों नौटंकी करते हैं। इवन संदीप महेश्वरी सर को देखा, बोला क्यों नौटंकी, इसकी क्या ज़रूरत है। बट अब मुझे वो चीज़ समझ में आती कि वो जो कई 100 घंटों की अभ्यास करके आप वो जो रिज़ल्ट देखते हो, जो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लोग तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं आपके रिजल्ट्स को, लेकिन आप उनकी अप्रिशिएशन को आप अपने प्रैक्टिस, अपनी अभ्यास से कनेक्ट करते हो, और वो ऑटोमेटिकली एक फीलिंग्स, एक इमोशंस में आकर वो आंसू निकल जाते हैं। सो अभ्यास करिए, बिकॉज अभ्यास इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभ्यास इज नथिंग बट चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंज से ही अभ्यास बनती है। अगर आप चैलेंज लें, अभी मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ। ये जो 30 डे का चैलेंज है, जो 30 डे का चैलेंज मैंने लिया, इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए कई दिन ऐसे आए, कई बार ऐसा लगा कि मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, फिर भी मैंने बनाया। कई बार सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वीडियो बनाना ही सही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बनाया। प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज ऐसे हो गए थे कि वीडियोस बनाना एक सेल्फिशनेस हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने बनाया, क्योंकि मैंने माइंडसेट को समझा कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ द वे। मेरे वीडियो बनाने नहीं बनाने से कुछ होने नहीं वाला है। सो आई नीड टू मेक वीडियोस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, जब आप चैलेंजेस लेते हो, आप ग्रो करते हो अपने फील्ड में, अपने करियर में, अपने आपको जहाँ पहुँचना है आप ग्रो करते हो। आपको फिटनेस में ग्रोथ चाहिए, आपको फिटनेस में और एक्टिव होना है, आपको चैलेंजेस लेना पड़ेगा। आपको अपनी कोई स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपको चैलेंजेस लेना पड़ेगा। आपको कोई हैबिट डेवलप करना है, आपको चैलेंजेस लेना पड़ेगा। आपको कोई हैबिट्स डिलीट करनी है, आपको चैलेंजेस लेनी पड़ेगी। बिकॉज चैलेंजेस आर द एसेंशियल फॉर योर ग्रोथ, for your next version of your life. And if you want to become a successful person, if you want to become a success, then you need to take challenges. Challenges दूसरों के लिए मत लो, अपने लिए लो। खुद के लिए challenges लो, तब आप ज़िंदगी में कामयाब होगे। खुद की नज़रों में क्रेडिबिलिटी इतनी बिल्ड कर लो कि आप खुद में एक इतने वर्सेटाइल पर्सन बन जाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप खुद में एक बिलीव पहले गेन करो, then you can, of course man, believe in yourself. You know, once you believe in yourself, people start believing in you. So make sure you believe in yourself. एक लीडर तब आदमी बनता है जब वो खुद में पहले बिलीव करता है, तब लोग उसमें बिलीव करते हैं। एक लीडर वो नहीं होता है जो सिंपैथी गेन करे, एक लीडर वो होता है जो खुद में बिलीव करे और हर चीज़ के लिए रेडी रहे, चाहे मे बी वो फेलियर हो, मे बी कोई भी चीज़ हो, आप उस चीज़ के लिए रेडी रहे। और चैलेंजेस बहुत पावरफुल है दोस्तों, मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ें अचीव भी करी है, अब मुझे मज़ा आ रहा है इस चीज़ में करने के लिए। और मेरा अभी नेक्स्ट चैलेंज है जो मेरे पर्सनल के लिए है, वो है 30 डे रीडिंग चैलेंज। ऑल्दो आई लव टू रीड बुक बट आई एम नॉट कंसिस्टेंट। अब मैं उस चीज़ को और बेहतरीन करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई टेक चैलेंज ऑफ 30 डे रीडिंग चैलेंज, वेयर आई सपोज टू रीड at least for the half an hour with my full concentration। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा मन नहीं है फिर भी मैं रीड कर रहा हूँ, मुझे वो मन के साथ रीड करना है। बिकॉज रीडिंग इज समथिंग आपको इंटरेस्ट देकर रीड करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो माई नेक्स्ट चैलेंज इज 30 डे रीडिंग चैलेंज, एट द सेम टाइम 30 डे हेल्थ चैलेंज। ऑल्दो मैं एक्सरसाइज करता हूँ बट मैं भी इसको चैलेंज के तौर पर ले रहा हूँ।
next 30 day I have to take challenge, and where I have to do exercise at least for 1 hour to break sweat until I become sweat. जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक मुझे एक्सरसाइज करना है, और एटलीस्ट 1 आवर तक तो करना ही करना है. सो दिस 2 challenges आई एम टेकिंग फॉर माई सेल्फ. आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सी चैलेंज ले रहे हो. सो एक कम्युनिटी बनाते हैं दोस्तों, आइए मिलकर हम दोनों सक्सेस अचीव करते हैं. हम मिलकर एक कंट्री को प्राउड फील कराते हैं. याद रखिए, जो एथलीट्स हैं वो एथलीट्स की हम 5 मिनट की परफेक्टनेस को देखकर तारीफ़ करते हैं, लेकिन उस एथलीट्स ने जो पिछले कई 100 घंटों की प्रैक्टिस लगाकर वो जो रिज़ल्ट लाया है उसको मत भूलिए. तो आपको भी अगर एक्सीलेंस चाहिए अपनी लाइफ में किसी चीज़ में, आपको कई 100 घंटों की प्रैक्टिस अभ्यास करना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर सब्स्टिट्यूट. आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, आप उसको बदल कर कुछ और नहीं ला सकते हो. आपको अभ्यास करनी ही पड़ेगी. सिंपल एंड प्लेन. सो मेक श्योर, बहाने बंद. आज से एक्शन प्लान एंड एवरीथिंग राइट नाउ. चैलेंजेस लो और उस पर यार अड़े रहो. दैट्स द ओनली वे टू अचीव एक्सीलेंस इन लाइफ. Thank you so much for watching this video. I will meet you on the next video, and now I am coming with more powerful video, because I will come with more specific, more in the structure way. So thank you so much for watching this video. I will meet you on the next video. Make sure ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने चैलेंज ज़रूर मेंशन करें कि आप कौन से चैलेंज ले रहे हैं, ताकि हम मिलकर उसको कंप्लीट कर सकें. So thank you so much for watching this video once again. I will meet you on the next video.